آپ کو یاد ہے کہ پچھلے کل ہم نے 13 چیز کو 3 میں تقسیم کیا تھا، ایک میں 6، ایک میں 5 اور ایک میں 2۔ 6 کیا ہے؟ الف مادہ، یا مادہ، واو مادہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ یہ 6 چیز ہے تو ہم کھینچ کر پڑھیں۔ کتنے چیز؟ 6 چیز۔ نمبر 1 الف مادہ۔ الف مادہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کے بعد خالی الف۔ الف مادہ کسے کہتے ہیں؟ جواب دیں گے۔ زبر کے بعد خالی الف یا الف، نام اس کا کیا؟ الف مادہ۔ نمبر 2 زیر کے بعد جزم والا یا، زیر کے بعد جزم والا یا، نام یا مادہ، نام یا مادہ۔ نمبر 3 پیش کے بعد جزم والا واو، نام کیا؟ واو مادہ۔ الف مادہ، یا مادہ، واو مادہ۔ اور کیا؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ یہ کتنے چیز ہو گئی؟ 6 چیز ہے۔ سمجھ لیجیے اس کو ٹھیک سے، یہ 6 چیز ہے۔ ان کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنے چیز ہو گئی؟ 6۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا 2 چیز۔ کتنے چیز؟ 2 چیز۔ ایک ہے جزم، اس کو ہم کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے۔ کتنے بار؟ 1 بار۔ اور ایک ہے تشدید، اس کو بھی ہم ملا کر پڑھیں گے، مگر کتنے بار؟ 2 بار۔ الغرض جزم اور تشدید کو ملا کر پڑھیں گے۔ جزم اور تشدید کو تو یہ کتنے چیز ہو گئی؟ 2 چیز ہو گئی۔ کتنے چیز ہو گئی؟ اب باقی کتنے؟ 5۔ وہ 5 کون ہے؟ ایک زبر ہے، ایک زیر ہے اور ایک پیش ہے۔ اور ایک کون ہے؟ زبر کے بعد جزم والا واو، نام واو لی۔ زبر کے بعد جزم والا واو، نام واو لی۔ اور ایک ہے زبر کے بعد جزم والا یا لی۔ کتنی چیز ہو گئی؟ 5 چیز۔ ان 5 کو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ 6 چیز ہے جن کو ہم ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، یہ 2 چیز ہے جن کو ہم ملا کر پڑھیں گے، اور یہ 5 چیز ہے جن کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ یہ تو میں آپ کو بتایا پڑھنے کا طریقہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا گناہ کا طریقہ کیا ہے۔ کل میں آپ کو بتایا تھا کہ نون اور میم کے اوپر اگر تشدید ہے تو گناہ فائنل، گناہ کریں گے۔ نون اور میم پر تشدید ہے تو گناہ کریں گے فائنل۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس طرح پتی کے بغیر چائے نہیں بن سکتی، نون اور میم کے بغیر گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس نون اور میم کے ہم نے 3 تقسیم کیا تھا، ایک تشدید والا جیسے کہ سامنے ہے، ایک حرکت والا، ایک جزم والا۔ اگر نون میم تشدید والا ہے تو گناہ کریں گے فائنل، اور یہی نون میم اگر حرکت والا ہو، مطلب زبر زیر پیش والا ہو، تو پھر گناہ نہیں کریں گے۔ اور یہی نون اور میم اگر جزم والا ہو، کیا والا ہو؟ جزم والا ہو، تو پھر میں نے اس کو تقسیم کیا تھا کتنے میں؟ 2 اور 26 میں۔ اسی طریقے سے نون کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کے ساتھ کس کو بھی ساتھ کیے تھے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ چونکہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی تنوین اور نون ساکن ایک ہی چیز ہے۔ یہ چار بولیے نہیں، یہ چار کیا ایک ہی ہے؟ بولیے نہیں، چار ایک ہی ہے، تو ان کا قاعدہ بھی ایک ہے۔ ان کا قاعدہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد 8 حروف ہے تو اس میں گناہ
नहीं करेंगे। और अगर 20 है तो उसमें गुनाह करेंगे। ये नुस्खा मैं कल आपको दिया था। मीम की नून और मीम पर तशदीद है तो गुनाह करेंगे। जबर जब पेश है तो गुनाह नहीं करेंगे। जज़म हो तो देखेंगे मीम को, उसके लेफ्ट में 2 हरफ है, वो कौन अभी बताऊंगा, तो गुनाह करेंगे। और अगर 26 है तो गुनाह नहीं करेंगे। अब हमें इन 2 में, इसमें से हमें 2 को पहचानना है। इस 2 को पहचानेंगे तो ये 66, यानी अगर ये 2 है तो 2 है, इस 2 में से नहीं है तो फिर कौन है, फिर वो 26 में से है। तो 2 है तो गुनाह करेंगे, 26 है तो गुनाह नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता दूंगा कि ये 2 कौन है, समझ लीजिए। मीम के ऊपर जज़म है, मीम के ऊपर क्या है, ध्यान दीजिए। हाँ के ऊपर पेश है और मीम के ऊपर क्या है, जज़म है। जज़म वाले हरफ को, ऊंची आवाज, जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाला हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कितने बार, 1 बार। और मीम पर जज़म है तो देखेंगे, मीम पर जज़म है तो देखेंगे, मीम पर जज़म है तो देखेंगे। क्या देखेंगे, अगर बा है तो फिर गुनाह करेंगे, बा है तो गुनाह करेंगे। अब इसको हम 2 तरह पढ़ सकते हैं। हाँ में पेश हूँ, हमने गुनाह किए नहीं किए। और एक तरीका, हाँ में पेश हूँ, हमने गुनाह की। तो इसमें हम या तो गुनाह करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त हम गुनाह करेंगे चूंकि बा है। हाँ में पेश हूँ। इसी तरह और एक हरफ मैं बताऊंगा, वो है मीम। अगर मीम के बाद मीम दोबारा आ जाए तो भी गुनाह करेंगे। हाँ मीम पेश हूँ। अब देखिए, बा और मीम में से कोई है, फिर किस में से है, 26 में से है, तो फिर गुनाह। हाँ मीम पेश हूँ, ये गलत है चूंकि बा मीम नहीं है। ध्यान दीजिए, हाँ मीम पेश हूँ क्या है, ये गलत है चूंकि बा मीम नहीं है। आई बात समझ में, हाँ मीम पेश हूँ पढ़ी, ये सही है चूंकि बा मीम। अब बात खत्म हो गई। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुनाह करेंगे, जबर जब गुनाह, जज़म हो तो देखेंगे। उसके बाद अगर बा है तो गुनाह करेंगे, या और एक मीम है तो गुनाह करेंगे। बाकी 26 से है तो गुनाह नहीं। मीम की बात खत्म हो गई ना, मीम की बात खत्म हो गई ना। अब हम नून की बात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम नून की बात करेंगे, क्या क्या, 8 और 20। मैं 8 से मुलाकात कराऊंगा आज। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर 8 में से कोई आए, वो 8 कौन है, जरा ध्यान दीजिए। वो 8 कौन है, ध्यान दीजिए, मेरे साथ बात बोलेंगे। हमजा है, हमजा है, हमजा है, आइन हा, आइन हा, हमजा है, आइन हा, हमजा है, आइन हा, हमजा है, आइन हा, हमजा है, आइन हा, गैन खो, गैन खो, हमजा है, आइन हा, गैन खो, हमजा है, आइन हा, गैन खो, लाम रा, लाम रा। इन आप हुरूफ को याद करेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। हमजा है, आइन हा, गैन खो, लाम रा, हमजा है, आइन हा, गैन खो, लाम
اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر ہم گننا نہیں کریں گے، پھر ہم گننا نہیں کریں گے، پھر ہم گننا نہیں کریں گے۔ یہ 8 حرف آئے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد تو پھر گننا نہیں کریں گے۔ اور میم کا قاعدہ ہے کہ اگر 26 حروف آئے تو پھر ہم گننا، ان دونوں کی میں ایک مثال دیتا ہوں، بس ایک مثال تفسیری انشاءاللہ قرآن پاک میں۔ دھیان دیجئے بلیک بورڈ کی طرف۔ دیکھیے حمزہ کے اوپر زبر ہے، دھیان دیجئے، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور نون کے اوپر کیا ہے؟ مطلب یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے۔ اب وہ نون ساکن کے بعد یہ کون ہے؟ کیا اس میں سے ہے؟ یہ ہے نا، تو پھر گننا نہیں کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، یہ غلط ہے۔ جب ہم نے بتایا گننا نہیں کریں گے پھر کیوں کرنے کا موقع مل گیا کیا؟ حمزہ نون زبر ان، گننا کیونکہ آئین ہے، 8 میں سے آئین ہے۔ حمزہ نون زبر ان، آگے دیکھیے آئین کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر جزم ہے، مطلب میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد کیا بامین ہے؟ پھر کون ہے؟ بولیں گے 26 ہے نا، 26 میں سے کہاں پھر گننا؟ عین میم زبر ام۔ آپ لوگ سب سو رہے کیا؟ آپ لوگ سب سو رہے کیا؟ گننا کریں گے؟ آپ کہہ رہے کہ مولا جب آپ کر رہے پھر ہم کیوں نہیں کریں گے؟ میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے گننا کر رہا ہوں، پھر آپ بھی کریں گے تو پھر کچھ نہیں سمجھا۔ عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم، گننا کریں گے؟ گننا عین میم زبر ام، ان تا زبر تا، انعمت، لیکن اس میں مزہ تو ہے نا، انعمت، کہ بہت زبردست، یہ زبردست نہیں خطرناک ہے۔ علی بسمہ میں انعمت علیہم، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ سمجھ لیجئے قاعدہ کو۔ ایک تو قاعدہ میں آپ کو سمجھایا کہ 6 چیز ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے، 2 ہے تو ملا کر پڑھیں گے، 5 ہے تو جلدی پڑھیں گے۔ ایک گننا کی بات میں آپ کو کروں، گننا کی بات بھی کروں، نون کے اوپر تشدید ہے تو گننا کریں گے۔ نون کے اوپر زبر زیر پیش ہے، زبر زیر پیش ہے تو پھر گننا نہیں کریں گے۔ اور نون کے اوپر اگر جزم ہے یا اس کے ساتھ کون ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے تو پھر دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں گے۔ 8 حرف ہے تو گننا نہیں کریں گے، 20 ہے تو گننا کریں گے۔ بالکل اسی طرح میں میم کی بات کروں گا، میم کے اوپر تشدید ہے تو گننا کریں گے، میم کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو گننا نہیں کریں گے، میم کے اوپر جزم ہے تو دیکھیں گے، 2 اکشر ہے تو گننا کریں گے، اور اگر 26 ہے تو گننا نہیں کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا مختصر
मुख्तसर से मुख्तसर कायदा बतलाया। पढ़ना कैसा, उसमें से गुन्ना करना कहाँ कहाँ। अब बस समझ में। अब मैं आपको नमाज जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहला काम तकबीर तहरीमा। वो क्या है? अल्लाहु अकबर। मैं वो जरा आपको पढ़ के समझाऊंगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपको एक एक शब्द पर, एक एक वर्ड पर, एक एक जुमला, सेंटेंस पर आपको खूब गौर करना है। सबसे पहला काम आपको देखना है कि इनमें हुरूफ है कौन कौन, ये देखना है। इसमें अक्षर कौन कौन है। तो जरा आप मुझे बताइए ना, पहला हर्फ क्या है? अलीफ। उसके बाद लाम। उसके बाद लाम। उसके बाद हा। उसके बाद अलीफ। उसके बाद काफ। उसके बाद वाव। उसके बाद रा। एक काम। दूसरा काम आपको करना, इन हुरूफ के ऊपर या नीचे क्या है। जैसे सबसे पहला क्या है? अलीफ। उस अलीफ पर क्या है? दूसरा ये लाम, इसको खाली छोड़ दिए। दूसरा ये भी लाम है, उस लाम के ऊपर क्या है? तशदीद के ऊपर क्या है? उसके बाद क्या है? हाँ के ऊपर क्या है? पेश है। और उसके बाद ये क्या है? अलिफ है। और उस अलिफ के ऊपर क्या है? ज़बर है। उसके बाद क्या है? उस काफ के ऊपर क्या है? जज़म है। उसके बाद क्या? उस बा के ऊपर क्या है? उसके बाद क्या? उस रा के ऊपर क्या है? पेश। यहाँ बात और आगे है या खत्म, तो इसलिए हम यहाँ एक गोल निशानी देते हैं। पहला काम हमने क्या किए? हुरूफ को पहचाना, उसके बाद हमने हरकत को समझे। अब मैं इन सबको इन तीन में, या तो 6 या तो 2 या 5, इन तीन के जरिए हम इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए, इन तीन चीज को समझने के लिए, कुरान पाक को बआसानी पढ़ने के लिए आपको जो बात समझना है, मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। बच्चा जब दुकान को जाता है, बच्चे क्यों जाते हैं दुकान? चॉकलेट खरीदने। काम उसका क्या होता है? चॉकलेट खरीदना होता है। अच्छा, वो बच्चा दुकान में जाके क्या कहता है कि आपकी दुकान में क्या क्या है? पूछते, जवाब दीजिए। फिर क्या अगर उसने पूछा तो फिर दुकान वाले क्या जवाब देंगे? दुकान वाले क्या बोलेंगे? तुझे क्या चाहिए बोलना। आप भी बच्चे हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं करना। कोई भी आयत, कोई भी सेंटेंस, वाक्य आप शुरू करेंगे ना, उमूमन, ध्यान दीजिए, उमूमन आपको जबर या जेर या पेश से मुलाकात होगी। आप पूछ रहे हैं कि अगर खरा जबर है तो उसको खींचेंगे, वो तो आपको पता है। आप कहते हैं अगर खड़ी जेर है तो मैं कहता हूं उसको भी खींचेंगे। आप पूछ रहे अगर उल्टा पेश, शुरू में उल्टा पेश होता ही टेंशन है। शुरू में 2 जबर भी नहीं, शुरू में 2 जेर भी नहीं, शुरू में 2 पेश भी नहीं। आई बस समझ में? शुरू में जज़म भी नहीं, शुरू में तशदीद भी नहीं। मेरी बात समझ में आ जाएगा? शुरू में 2 जबर भी नहीं, 2 जेर भी नहीं, 2 पेश भी नहीं। खड़ा जबर तो होता है, खड़ी जेर भी, लेकिन उल्टा पेश नहीं। असल जो चीज है ना, 99.9 बोल सकते हैं कि अक्सर आयतों में या तो जबर या तो जेर या। अब हमें इन जबर जेर पेश को हमें कैसे पढ़ना? तो उनमें 3 ऑप्शंस है। कितने? या तो हम उन 3 को खींचेंगे, या तो उन 3 को हम मिलाकर पढ़ेंगे, या उन 3 को हम जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं, इतना टेंशन भी नहीं। आपको 2 का टेंशन करना है। क्या हम खींचेंगे? नहीं तो क्या हम मिलाएंगे? अगर खींचने की कोई चीज नहीं या मिलाने की कोई चीज नहीं, तो फिर तो फाइनल हम जल्दी पढ़ेंगे। इसको, इसके बारे में आपको सोचना है।
कोई भी आयत शुरू करेंगे पहले इन 6 में के एक को यहाँ आप तलाश करेंगे। जरा आप यहाँ तलाश कीजिए, हमजा के ऊपर ज़बर है, खाली अलिफ तो नहीं, मतलब अलिफ मद्दा नहीं, और ये खड़ा भी नहीं, तो क्या 6 में से यह कोई कुछ है? जब 6 में से नहीं है तो आप जल्दी नहीं करना, फिर देखना कि 2 में से कोई है क्या। अच्छा 6 में से होता तो आप क्या करते थे? एक अलिफ खींचते। जब 6 नहीं है तो आप खींच नहीं सकते। अब सवाल 2 में से कोई है तो हम लाम को छोड़ेंगे, उसके बाद लाम को देखेंगे, 2 में से कोई है, कौन है, तो फिर क्या करेंगे? बस ये इसका जवाब है। हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा लाम ज़बर अल। अब लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, 6 में है, किसमें है? एक तो बात है 6 में है, इसलिए क्या करेंगे? एक अलिफ खींचेंगे। और एक चीज आपको ध्यान देना है, अलिफ लाम लाम, ये लफ्ज़ अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम से पहले ज़बर है, लाम से पहले, तो फिर लाम को दूर पड़ेंगे, लाम खड़ा ज़बर तरफ ध्यान दीजिए। पहला हमज़ा लाम ज़बर अल, वो किसमें से है? 2 में से। क्यों? तशदीद। लाम खड़ा ज़बर लो, ये किसमें से है? 6 में से है। क्यों? खड़ा ज़बर है। आगे देखिए, हा के ऊपर क्या है? पेश। अब हम तरफ देखेंगे क्या हम पेश को खींच सकते? क्योंकि जज़म वाला वाव भी नहीं और पेश सीधा है, उल्टा नहीं, इसलिए यहाँ खींचने का कोई, यानी फिर ये 6 में से नहीं है, मतलब इसको खींचना। अब हम ढूंढते हैं 2 में से, जज़म या तशदीद, उसके बाद हमज़ा है, जवाब दीजिए। उस पर जज़म तशदीद है नहीं, तो फिर हम मिला भी नहीं सकते। समझ लीजिए, पेश उल्टा नहीं है, पेश के बाद जज़म वाला वाव भी नहीं है, इसलिए हम खींच नहीं सकते, और पेश के बाद जज़म तशदीद नहीं है, इसलिए हम मिला भी नहीं सकते, खींच नहीं सकते, मिला नहीं सकते, फिर करेंगे क्या? फिर जल्दी पढ़ेंगे। हाँ पेश हो, ये पेश 5 में से है ना, जब 2 में से नहीं तो 5 में तो जरूर होगा। हाँ पेश हो, अल्लाहु, अल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह में 3 तलफ़्फ़ुज़ है, एक है अल, एक है लो और एक है हु। इसमें कितने तलफ़्फ़ुज़ है? सबसे पहला वाला मिलाकर अल है ना 2 में, दूसरा वाला खींच कर किसमें? 6 में, तीसरा वाला हरकत किसमें? लफ्ज़ अल्लाह में कितने तलफ़्फ़ुज़ है? कितने नहीं, कितने तरह के? पूरे कुरान पाक में भी 3 ही तरह के हैं। ये अल्लाह है, ये लफ्ज़ अल्लाह है। जिस तरह इस एक लफ्ज़ में 3 तरह के तलफ़्फ़ुज़ है, मिलाकर खींचकर और जल्दी, पूरे कुरान पाक वो भी अल्लाह का कलाम है, इसलिए उसमें भी 3 ही तरह के हैं, या तो खींचना या मिलाना जल्दी। अजय है ना जब बात, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने भी अपने कुरान को किस अंदाज से कि अपने नाम में जितने तरह के तलफ़्फ़ुज़, पूरे कुरान अपने कलाम में भी उतनी तलफ़्फ़ुज़। अल्लाहु, अल्लाहु। आगे देखिए, हमज़ा के ऊपर ज़बर है। सवाल, क्या हम इस ज़बर को खींच सकते? मजबूरी क्या? जल्दी बोलिएगा। जज़म वाला नहीं, मतलब अरे अलिफ नहीं है। अब बोलते हम चावल नहीं खाए, क्यों? कि बिस्किट है, क्या नहीं, सालन नहीं। ज़बर का हम नहीं खींच सकते, क्यों? अलिफ नहीं। तो फिर क्या हम काफ के साथ मिला सकते? क्यों मिला सकते? क्योंकि जज़म है, हमज़ा काफ ज़बर अक। फिर बोलिए, फिर बोलिए, बा के ऊपर ज़बर है,
جواب دی زبر ہے، ہم کھینچ سکتے نہیں، ملا سکتے نہیں، با زبر بر، اب را کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، پھر سوچنا کیا ہے، را پیش رو، لیکن یہاں ٹھہرنا ہے، اور میں آپ کو قاعدہ بتایا تھا، آخری حرف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی آئے تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے؟ جزم دیں گے، اور یاد کیجئے یہ را ہے، را کے اوپر جزم ہے، را کبھی پر کبھی باریک، اس را پر جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اس را کو پور پڑھیں گے، با را زبر باو، یہ ملا کر پڑھیں گے، باو، ملائیں گے اور پور پڑھیں گے، باو، اکبر، اکبر،